So guys, today we will start decision tree. Okay. So before describing what is decision tree, we will look how decision tree looks like. Okay. So in fact, in decision tree, there are two types of decision tree can possible. One is regression decision tree. Another is classification regression tree. So what I am trying to say over here is this decision tree is equally applicable on both categories. Okay. So before going to the deep dive, let's revisit till now what we have covered. We have covered linear regression, and we also covered logistic regression. Linear regression for continuous type variable, and this is for category. We have already seen it. Okay, but in case of decision tree, you can use decision tree for regression tree as well as classification tree. Okay. So in fact, there is one more word that is called parametric model. There is another word, parametric. So guys, in case of linear regression or logistic regression, we have seen y is equal to beta 0, beta 1, x1, beta 2, x2, something like that, guys. So here basically we supposed to calculate the parameter values beta 0, beta 1 and beta 2, all such parameters. That's why sometimes people also called as those parameters as a parametric, because we supposed to calculate the parameters beta 0, beta 1, etc. But in case of decision tree, we are not going to calculate any constant like beta 0, beta 1, beta 2. Okay. So now question is, if this is not, decision tree is not a parametric based model, then how it looks like? Okay. So I am going to draw a decision tree, guys, for you. So please just bear with me, and obviously basically we will going we'll go to the deep dive how to create a decision tree, how we can basically analyze things based upon decision tree. So that is just basically I have basically planned to cover decision tree topic in two steps. Step one, basically I will assume that someone has given the decision tree for a particular data set. Someone has given to us decision tree for a particular data set. So what we will do, guys, basically first basically we will familiarize ourselves to what decision tree, how decision tree looks like. हम लोग देखेंगे उसे, based upon that basically slowly we will build up intuition how we can create such decision tree. Okay guys, ideas clear to all of you guys? Ideas clear guys? अंकित आइडिया क्लियर है? ओके अब देखो गाइस, ये स्लाइड आपको दिख रही है वाली पीपीटी आप लोगों को दिख रही है? Okay. So guys, in this PPT, what is given to us? This is a very classical PPT. Basically, you can find very easily everywhere. I will also basically share with you. So let's say these some observation past data is given to us. So some past data basically is given to us, and here basically you can think of this is independent variable x1. This is another independent variable x2. This is an third one independent variable, and this is our output variable. So here basically, as the name suggests, classification tree. So here basically we supposed to predict output in terms of classes. Okay. So here the idea here is
with the given condition. Let's say with the given condition, tomorrow, let's say India going to play with Australia. So whether the play is possible or not, we have to predict with the given conditions. For example, let's say outlook variable in X1, in that basically you can see sunny, and there is a chance of cloudy, or there might be chance of rain also might come. So this is given to us. Let's say the next day temperature forecast is also given to us. Next day basically that whether that winds will flow or not, all those things given to us. So question is, with those given set of parameters, can we predict whether the play will happen or not? So idea here is basically what we will do basically this with the help of past data, we will train one model. We will train one model, and then let's say next day basically India match is scheduled. So we are basically going to predict whether the match will happen or not. So obviously you will look for what is the x1 value, what is x2 value, what is the x3 value. So based upon those three values, basically you will calculate whether y is equal to yes or no, whether play will happen or not. Guys, idea is clear? If it is clear, please type on the chat window. If idea is clear, guys, type on the chat window. Okay. So now question is, let's say this database is given to us. Now someone has created a decision tree for us. Okay. And I am once again repeating it here. For a moment, basically, I am assuming that basically I am not interested how the tree has been created, but someone has given tree for this data set to us. So first basically we will familiarize ourselves how decision tree looks like, and once basically we are familiarized, then we will basically in second step basically we will analyze how decision tree can be used for predicting something, and third step basically we will look into this, have a deep dive how we can create such decision tree. Okay guys, so I am going to draw a decision tree that is created by someone else for us for this data set. So I am going to take the decision tree. Basically, I am going to draw the decision tree for you. So guys, let's say decision tree is like this. Let's say just a minute, guys. Just a minute. Just a minute, guys. So let's say this is visible, guys. This is visible. Hello. Okay. So guys, let's say one node is outlook, and now we are partitioning into this three categories. So let's say first let me build a tree, then I will explain you how the tree has been built. So this is for sunny, this is for cloudy, and this is for raining. Now within this basically I am going to write just a minute. I am going to write something over here, y is equal to 2 and n is equal to 3. Let me draw the tree, then I will explain you how we can interpret the tree. So let's say this is y, and this is n is equal to 0, and let's say y is equal to 3 over here and n is equal to 2 over here. Now once again I have made one more partition based upon that temperature is less than or equal to 30, temperature is greater than 30, and again then partition basically happens over here. So this is, now let's say y is equal to 2 and n is equal to 0, y is equal to 0, n is equal to 3, and this is basically will remain as it is. And now consider this again, we are doing some partition over here. So let's say the variable windy, and here is equal to basically let's say yes, and here variable windy, let's say equal to no. Now once again the partition result is like this.
y is equal to 0, n is equal to 2. Just a minute, guys. For similarity, basically, I will take different colors for uniformity. So, guys, y is equal to 0, n is equal to 2, and just a minute, guys. And let's say the final y is equal to 3, n is equal to 2, 0. Yes, Ankit, can you come on the mic? Ankit. Yes, sir. So this structure looks like a tree, Yes, sir. but it's when you compare with natural tree, this is basically invert of natural tree, because in natural tree basically tree looks like this. Okay. Yes. Here is a root and then leaves. But here basically things are changed. Here basically this node is where the things are started. This node is called root node. Okay. Okay, sir. Okay, sir. And basically all those things basically where further partitioning is possible. Like let's say these two nodes are called intermediate node. Okay, intermediate node. Okay, sir. And all those nodes where basically is no further partitioning over here, no branches further. So like this node, this node, this node, this node, or maybe this node. These nodes called as a leaf node or decision making node. Okay, idea is clear? Okay, sir. Okay, so now basically now correlate with that given data set. So basically you can see here basically in case of Outlook, how many branches you can see, Ankit? For Outlook, how many branches? 3. Sunny, cloudy and raining. Yes, 3. Yes. Okay, so why it is 3? I'm going to take you back towards slide. Just basically see this slide. In this slide, basically, can you see in case of Outlook? In case of Outlook, sunny value is possible. Can you see here? Cloudy is possible and rainy is possible. Yes, sir. Okay, and basically, you might have seen basically. Just a minute, guys. Just a minute, guys. And just let me go back. And one more thing, basically, just I'm going to take a slide also. So, guys, can you see here? If I ask you basically, corresponding sunny, जहां जिस रो में sunny है, उसके corresponding आपका value क्या आपका y की value क्या है? There are two nodes over here. Corresponding this is one node, this is another node. Corresponding sunny, there is another node, 3, and corresponding sunny. Now any other node? No. Now talk about sunny. How many yes? One S is there. Another yes, basically I think yes. Can you see basically in case of sunny path, basically you can see a y is equal to 2 and equal to 3. अंकित समझ में आ रहा है y is equal to 2 and equal to 3 कहाँ से आया? Yes, sir. Yes, sir. ये सेम इसी तरीके से बना हुआ है. सपोज करो ये ट्री किसी ने बना के हमें दिया है, ठीक है? ये ट्री हमें किसी ने बना के दिया है हमें, गाइस. ओके, सो नाउ द आइडिया हियर इज, ये ट्री किसी ने बना के दिया है मेरे को. तो बात अब ये आती है, क्या करेंगे इस ट्री का मैं क्या कर सकता हूँ, यूज क्या होगा इसका, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप लोग एक जस्ट मिनट गाइस, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ये जस्ट मिनट. ये विजिबल क्लियर आप लोगों को गाइस? ये विजिबल है? यस सर. अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको कंडीशन दूं कि भाई कल मैच होना है, उसके लिए आपका जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि भाई वेदर फोरकास्ट टीम बताया कि रेन होने के चांसेस हैं, ठीक है, और नॉट विंडी सिचुएशन है, एंड टेम्परेचर इक्वल टू 40 है. So what will be your decision? Whether play will happen or not? So guys, how basically you will proceed over here? See, first of all, rain chances is there. So basically you will follow this path. Rain chances is there. Okay. Then you are saying not windy. So not windy, basically you will follow this path. Okay. Now temperature is not
it's not an issue. If some information is given and we are not using that information, there is no issue in case of decision tree. So basically, you landed up over here by using this information. You started journey from here and you came to this leaf node. This node also called a decision node. So Ankit, what will be your decision? If you start your journey from Well, Outlook and reach over here, so what you will say? Then that play will happen or not? yes, sir. Play will Play happen? will happen. Okay. Yes. Now one more condition, basically, let's say one more example we can take. Let's say cloudy and temperature is equal to 50. Suppose this example given to us. So cloudy over here, we will follow this path. Again, play will happen. Yes. Okay. So I think we have answered two questions. How decision tree looks like. It exactly looks like a tree. We have already explored it. Second, basically, if decision tree is given to us, if new data points, let's say new data point means new query points comes to us, we can easily answer whether play will happen or not. So this is example number 1. This is example number 2. Ideas clear? Yes, sir. So, and in fact, in other words, basically, I can say this tree is nothing but basically our model trained upon the data set, trained upon the past data set. Idea clear, Ankit? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए. If idea is clear, thank you. Now, Dhananjay, can you use your mic? Dhananjay, Yes, sir. आइडिया क्लियर है बेटा जो मैंने बताया अभी तक? Yes, sir. अभी तक मैंने क्या बताया है कि आप अभी इस चक्कर मत पड़ना कि हाउ द डिसीजन ट्रीज बेसिकली वी कैन कंस्ट्रक्ट. दैट आई विल आंसर. Before that, basically, my objective was basically at least I can familiarize you how decision tree looks like. And if someone gives you a decision tree for a particular data set based upon the past experience, obviously you can use that decision tree in making the decisions. Idea clear? Yes, sir. And as I told you, basically, Yes, that sir. node that where there is no further split, we are using terminology for that node is a leaf node or decision node. So Yes, leaf node basically is terminology comes from tree. It's natural tree. Basically, once that leaf starts, there is no further expansion in the tree. That's why we are calling those nodes as a Yes. leaf node. Or you have already seen basically if some new query data points comes to us, we can take a decision. So we are taking a decision once we reach to that leaf node. We are not taking decision based upon the intermediate node. We are, Yes. taking the decision based upon the leaf node. So sometimes leaf node also called as a decision making node. Ideas clear, guys? Yes, See sir. all of you type on the chat window. Okay. So now, guys, one more thing, guys. Basically, I want to tell you. One more thing, basically, I want to tell you. So, guys, Neha, can you use the mic? Yes, sir. नेहा समझ में आ रहा है पूरा? हाँ जी. अच्छा, हमने आप देखो जैसे आउटलुक है आपका सनी, क्लाउडी, रेनी आपका ये है ना, या टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, लेस देन 30. सो देखो पहले तो नया चीज समझो. देखो स्प्लिट, यहाँ पर बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ. स्प्लिट का मतलब क्या है? आपने एक्सेल सीट में फिल्टरिंग की है, आपने फिल्टर ऑपरेशन लगाया है. Yes, sir. तो ये स्प्लिटिंग सम सॉर्ट ऑफ फिल्टरिंग है. आप इस तरह मान के चलिए कि आपने अगर सनी के रेफरेंस में फिल्टरिंग की है आपका, तो आपका एक तरह का डेटाबेस बना देगा. जहां पर सनी होगा वो आपका अलग डेटाबेस बन जाएगा, नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी. फिल्टरिंग होगी आपको एक तरीके से देखा जाए तो ये, Yes, ठीक है sir. ना. तो ये फिल्टरिंग हो रही है बेसिकली बेस्ड अपॉन, और आपका जो फिल्टरिंग हो रही है कुछ वेरिएबल के रेफरेंस में हो रही है. इनफैक्ट इनको बोलते हैं, आपका जो फिल्टरिंग जिसके रेफरेंस में हो रही है इनको बोलते हैं रूल्स. इनको क्या बोलते हैं? रूल्स बोलते हैं. Rules. ओके. Yes, sir. नाउ अब देखो बातें आती है. देखो हमें दिख गया कि दिस डिसीजन ट्री लुक्स लाइक अ ट्री. We have already learned what is root node, what is intermediate node, what is decision node or leaf node. We have already seen all the terminology. Now there is a new terminology, Yes. rules. Okay. So if I say to you one thing, if someone tell us how to create a rules, तो पार्टनरशिप में आराम से कर सकता हूं मैं. हाँ जी. ठीक है. दूसरा एक चीज देखो, एक तो रूल अगर मुझे कोई बता दे तो पार्टीशनिंग आराम से कर सकता हूं.
अब बातें आती है कि रूल्स आपका जनरली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनसे ही बनते हैं रूल्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनसे बनते हैं। तो हमारे डेटा सेट में जो स्लाइड अगर आप देख रहे हो आपका, मैं एक बार वो करता हूँ, स्लाइड देख रहे हो ना नेहा आप? यस स्लाइड सर। में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? 1 2 3। 3 है ना। अब बात क्वेश्चन ये आता Yes, है sir. कि रूल हमें बनाने ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई आउटलुक से क्यों स्टार्ट किया सर आपने? ये टेम्परेचर से स्टार्ट क्यों नहीं किया, विंडी से स्टार्ट क्यों नहीं किया आपने? हाँ जी। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, ठीक है ना। हाँ। दूसरा क्या करते हैं सर, ट्री कितना डेप्थ का बनना है, कितनी उसमें डेप्थ होनी है। डेप्थ का मतलब समझो क्या है, देखो इस तरह समझो, डेप्थ का ट्री दोबारा से ले आया हूं मैं। डेप्थ का मतलब कोई नया यहाँ पर ये है कि जब ट्री बना रहे हो ना, कोई देखो जैसे ये इसकी डेप्थ 2 है इस ट्री की। डेप्थ 2 का मतलब क्या, नया देखो जरा, रूट से स्टार्ट किया आपने यहाँ पर, यहाँ तक पहले लेवल तक गए, दिस इज लेवल नंबर 1। फिर यहाँ से आपने यहाँ स्टार्ट किया लेवल नंबर 2, डेप्थ क्या इसकी 2 है। 2। तो बात ये Yes, आती है कि sir. इसकी डेप्थ 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? ठीक है ना, Yes, sir. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी। ठीक है। अब देखो बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखो अल्टीमेटली देखो हमें जो आंसर देने आपका वो देने इस ट्री के रेफरेंस में, अगर ट्री बनाना चाहते हैं तो हमें 3 क्वेश्चन हमें आप हमारे पास आ रहे हैं नेचुरली। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हाउ टू क्रिएट अ रूल, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है आपका, हाउ टू सेलेक्ट द रूल्स। एंड व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ माय ट्री। What should be the depth of my tree? Depth, or another word basically you can say when I can stop making tree process, when I stop the split process. You can write like this, the split process, split further. Okay, when I stop the split process. नया ये चीज समझ में आ रही है, तीनों चीजें नया। Yes, sir. देखो अब मैं दोबारा समझा देता हूं, देखो गाइस, देखो हाउ टू क्रिएट अ रूल का मतलब क्या है, देखो वो क्वेश्चन ही वो वाला है कि आपका देखो जैसे टेम्परेचर इक्वल टू 30, लेस देन 30, ग्रेटर देन 30 क्यों लिया, टेम्परेचर ग्रेटर इक्वल 25 क्यों नहीं लिया, या कुछ और क्यों नहीं लिया, ठीक है ना नया। या फिर आपका क्या रूल आपने बनाया है, सनी क्लाउडी रेनी, आपका ये सनी के रेफरेंस में क्यों आपने पार्टीशनिंग किया, क्लाउडी क्यों, ये तो आपका है हाउ टू क्रिएट अ रूल, ठीक है नया। Yes, sir. अब आप सिंपल Yes, मान के sir. चलो, अगर इसी ट्री को समझ लें आपका, तो आउटलुक वेरिएबल्स आपका उसके करस्पॉन्डिंग 3 रूल बन गए। दिस पाथ, सनी वाला पाथ है, क्लाउडी वाला पाथ है, रेनी वाला पाथ है, 3 रूल तो आपका आउटलुक से बन गए, या Yes, आउटलुक sir. से बन गए। और सीधे टेम्परेचर से आपका लेट्स से केवल सिंपल मान के चल रहे हैं, 2 रूल टेम्परेचर से बन गए यहाँ पर, ठीक है, 2 रूल विंडी से बन गए यहाँ पर, Ye- ठीक है ना। Yes, sir. अब बात ये आती है, देखो लेट्स से हमने ये कितने लगभग 10 रूल, आपका 8 रूल हो गए। अब इन 8 रूल में से हमने आउटलुक ही क्यों लिया पहले, टेम्परेचर वाला रूल क्यों नहीं लिया पहले, विंडी वाला रूल क्यों नहीं लिया हमने पहले? दिस इज नथिंग बट बेसिकली हाउ टू सेलेक्ट द रूल, ठीक है। Okay. आइडिया इज क्लियर? Okay, sir. और पता तो ये Yes, sir. स्प्लिट को बंद करना है, ठीक है। अच्छा नया आप ये बताओ कि ये वाला आपका ये एक सेकंड बताना मेरे को जरा, जस्ट अ मिनट, ये वाला ये आपका सर्किल बनाया दिख रहा है, ये आपका आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अलग से? Yes, sir. इसमें y की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 0. 0। अब मैं कह रहा हूं यार ये y की वैल्यू का नई वैल्यू आपका सपोज करो ये वैल्यू नहीं है, नई वैल्यू निकल के आती है 3 और 1, ठीक है। पहले क्या थी, Okay. पहले 3 और 0 थी, अब 0 क्या हो गई 3 and 1, भी y की वैल्यू 1 हो गई है. नहीं सॉरी y की वैल्यू 2 है, सॉरी यहाँ 2 मानो सपोज करो 2 है, तुम ठीक है 2 and 1, ठीक है ना। 1. अब मुझे Yes, बताओ sir. कि आप क्या कहते हैं कि जो एग्जाम्पल लिए थे ना, एग्जाम्पल 1 लिया था, एग्जाम्पल 2 लिया था, एग्जाम्पल 1 से आपका यहाँ पर लैंड हुए थे आपका इस वाले नोट पे, ठीक है ना। हाँ. अगर ये वाली Yes, sir. पोजीशन है तो आपने डिसीजन ले लिया कि भाई प्ले होगा, यस। अगर ये वाली पोजीशन है तब भी डिसीजन क्या लोगे आप? No. भाई नो, यस अभी भी 2 है, ऐसे एक नो है, और yes अभी भी 2. Yes, sir. Yes अभी भी 2 है. हाँ तो क्या डिसीजन होगा आपका? Yes. यस।
चलो मैं एक काम करता हूँ कि एक आर्बिट्री और लेता हूँ कि लेट्स से 2 ये नो है, सॉरी 2 यस है 2 नो है, और मान लो इस नोट पे आप आते हो, आप क्या डिसीजन लेते? सर अब तो 50-50 हो गया। 50-50 होगा? 50-50 कोई डिसीजन होता है क्या? नहीं होता तो ये फर्दर अपन ब्रांचिंग कर देंगे इसमें। ठीक है, उससे पहले वो मैं उसको भी डिटेल में लेके जाऊंगा, उसको कैसे ब्रांचिंग कहाँ स्टॉप करनी है। तो मुझे ये बताओ, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटीज, दिस पॉसिबिलिटी, दिस पॉसिबिलिटी, दिस पॉसिबिलिटी, where you feel much more comfortable, where you find yourself in a comfortable situation so that you can take a decision very comfortably, कौन सा आपका वो सर है? 30 थ्री 30 वाला। 30 वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या यस हुआ सर। कि देखो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेरे को जो आउटपुट है प्रिडिक्ट करना है 2 क्लासेस में, यस और नो, 1 और 0, 0 1, वट एवर इट इज। मुझे उससे मतलब नहीं है कि मैच होगा नहीं होगा, ठीक है, मुझे मतलब है कि क्लियर कट डिसीजन होना चाहिए विद द गिवन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 जो दे रखे थे ना मैंने, ये वहां से मुझे क्लियर कट डिसीजन यस होता है कि कल मैच होगा नहीं होगा, मुझे 50-50 नहीं चाहिए, क्लियर कट डिसीजन। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर या तो 3-0 होता या 0-3 भी होता, मान लो सपोज करो, तब भी आप इसको लाइक करते, तो क्लियर कट डिसीजन तो होता यस है ना। सर। तो बात ये नहीं है कि मैच करवाना नहीं करवाना, मेरा मतलब है कि डिसीजन हम लोग कंफर्टेबली ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, ये सिचुएशन है। तो देखो, जहां पर ऐसा नोड जहां पर आपका एक क्लास पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है दूसरी क्लास को, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 3-0, सो यस क्लास मीन्स वाई इज डोमिनेटिंग एन, और क्लियर कट डिसीजन ले पा रहे हो यस आपका। और इसमें एक यस क्लास के सर। 100% आपका मेंबरशिप है, दूसरे की 0, इसको बोलते हैं होमोजीनियस नोड। होमोजीनियस। ठीक है ना। और आपका जहां पर क्या कहते हैं आपका मतलब ये भी होमोजीनियस हो गया, हमें तो क्लास से मतलब है, एक पूरी पूरी मेजोरिटी है, इसमें आपको बोलेंगे हेट्रोजीनियस, इसको भी हेट्रोजीनियस बोलेंगे। ठीक है ना, ओके सर। आइडिया क्लियर। तो देखो, अब मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, देखो अब सपोज करो कि एक रूल था R1, मान लो इनको R1 R2 बता रहा हूं, R1 रूल था, एक R2 रूल था, एक R3 रूल था। R1 की स्प्लिट की वजह से नोड आपको जो मुझे मिलता है वो 3 और 0 वाला मिलता है, मीन 3 मीन्स वाई, 0 मीन्स नो। R2 की वजह से मुझे मिलता है 3-1, वाई एंड नो, एंड R3 की वजह से मिलता है 3-3, सपोज करो। नया बताना मुझे वाई और नो। तो विच नोड इज यू विल लाइक मोस्ट, दिस नोड, द फर्स्ट वन। R1 R1। ये R1 की रूल्स की वजह से ये वाला नोड बना है, तो R1 को आप लाइक करोगे। यस सर। तो देखो क्या होता है कि जितने जैसे मैंने 8 रूल बताए थे ना, यहाँ पर 8 रूल सभी से स्प्लिट करके देख लेंगे, और जिस स्प्लिट की वजह से मुझे होमोजेनिटी वाले नोड मिलते हैं, ठीक है ना, उस वाले यस सर। रूल को मैं प्रेफर करूंगा। देखो, और ये 3-0 वाला केस आइडियल केस है, जनरली ऐसा नहीं होगा कि 100% क्लास मिल जाए, मान लो 80-20 का परसेंटेज मिल जाए। ठीक है ना, यस सर। ये आपका क्या कहते हैं, मान के चलो 50-50 का मिल जाए, या मान के चलो 70-30 का मिल जाए। तो आपको चेक करनी है कि होमोजेनिटी का लेवल किस में ज्यादा अच्छा है, उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा रूल सेलेक्ट करना है स्प्लिट के लिए, वो वाला रूल डिसाइड करोगे। आइडिया क्लियर? ओके सर। आइडिया यस क्लियर सर। ना। चलिए अब मैं दूसरे को मौका देता हूं मैं। थैंक यू। यस बेटा, ये सबको समझ में आ गया है? देवेश, कैन यू यूज योर माइक? Yes, sir. आइडिया क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. श्योर? Sure, sir. चलिए, तो गाइस इसको मैं डिलीट कर दूं पूरे इसको ट्री को। Yes, sir. चलिए, अब समझ में आ गया, तो चलते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब देखो स्लाइड ये तो ऑलरेडी बता ही दिया मैंने आपका ये। अब देखो गाइस, दो चीजें हैं, देखो एक तो गाइस ये था रिगार्डिंग रूल्स, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है रिगार्डिंग रूल्स। बेसिकली फर्स्ट स्टेप तो आपका ये था है हाउ टू क्रिएट अ रूल। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है हाउ टू
select a rule. Okay, so guys, पहले इसको देख लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. हाउ टू क्रिएट अ रूल. रूल बेसिकली अल्टीमेटली हमें किसके बनाने हैं? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बनाने हैं. जितने भी रूल बनाने गाइस हमें, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बनाने हैं. लेट्स से x1, x2, x3, x4. so let's say if x1 is a categorical variable, for example x1 is a city, तो सिटी में आपका नेम दे रखी है इन्होंने, जयपुर दे रखा है. सिटी में एक नेम सपोज करो, एक में दिल्ली दे रखा है, एक में आपका क्या कहते हैं आगरा दे रखा है सपोज करो. तो यू कैन वेरी इजीली यू कैन यूज फिल्टर ऑपरेशन and you can create a rule. So let's say city over here, you can create a rule like Delhi, this is for Delhi, this is for Jaipur, this is for Agra. You can create like this, guys. Dhananjay, idea is clear? Dhananjay, Yes, sir. this idea is clear? Yes, sir. अब बात ये आती है यार कि आपने कैटेगोरिकल वेरिएबल अगर आपका x1 x2 है तो क्रिएट कर लिया आपने. अब बात आती है कि अगर मान लो न्यूमेरिकल वेरिएबल हो तो लेट्स से x2 इज द एज. ठीक है ना? तो उस केस में क्या करोगे गाइस? इसमें स्टेप सुन लो जरा. पहला, शॉर्ट द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट एवर इट इज. जैसे x2 की जो वैल्यूज रखी थी हमने सबको शॉर्ट कर दिया. शॉर्ट करने को मान लो सपोज करो 5, 15, 20, 21, 23, 28, समथिंग लाइक दैट वैल्यूज आपका. अब आप क्या करोगे? लेट्स से एज, तो उसमें आप रूल बनाओगे लाइक दिस, एज ग्रेटर देन 5 और नॉट, इस हिसाब से डिवीजन हो जाएगा. और मे बी यू कैन लाइक एज इज ग्रेटर देन 15, एज इज ग्रेटर देन 20. इस तरीके से रूल बनाओगे. इससे पार्टीशनिंग होगी गाइस, और जो पार्टीशनिंग आपका होमोजेनिटी सबसे ज्यादा अच्छी देगा उस वाले रूल को आप सेलेक्ट करोगे. आइडिया इज क्लियर? Yes, sir. धनंजय, आइडिया इज क्लियर? आपने क्या किया? सिंपल Yes, sir. आपने क्या किया है कि इस तरह से शॉर्ट कर लिया. मतलब दे आर डिफरेंट वे. सिंपल मैं बता रहा हूँ, कमेंट समझ में आ जाए इजीली. शॉर्ट कर लो और हर एक वैल्यू को लेके ग्रेटर. तो अगर मान लो एज ग्रेटर देन 5 तो आपका दो पार्टीशन बन जाएंगे. एक पार्टीशन तो ये हो जाएगा पूरा, एक दूसरा ये हो जाएगा. ग्रेटर देन 15 में कौन से पार्टीशन बन जाएंगे? एक पार्टीशन ये बन जाएगा, इधर वाला एक पार्टीशन और एक इधर वाला Yes, sir. पार्टीशन. ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका देखो, अब जो रूल जिसकी वजह से आपका होमोजेनिटी सबसे ज्यादा आ रही है उस वाले रूल को हमें सेलेक्ट करना है. आइडिया क्लियर? तो धनंजय Yes, मेरे को sir. बताओ, सिंपल से बताओ, रूल बनाना क्लियर हो गया? पहले रूल लाने का मतलब क्या है? अगर मान लो कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो एक तरीके से थिंक ऑफ जस्ट एक्सेल शीट वाला फिल्टर ऑपरेशन हो रहा है. ठीक है? Yes, sir. और अगर कोई न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो सिंपल सा मान के चलो एज एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, एज के हिसाब से पार्टीशनिंग हो रही है. आइडिया क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अब धनंजय अगर ये आइडिया क्लियर है आपका, तो अब बात ये आती है, देखो अभी तक मैंने सिंपल से आपको ये बताया है कि हाउ टू क्रिएट अ रूल. अब मैंने होमोजेनिटी वाली बात तो कर दी, लेकिन होमोजेनिटी का मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको नहीं बताया है. मैथमेटिकली होमोजेनिटी कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा डेटाबेस तो होता नहीं, 10,000 रोज होती है, उसमें कैसे पता लगाओगे इसमें कितनी रोज कैसे होमोजीनियस है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? ठीक है ना? तो उसका एक तरीका सुनो जरा, Yes, sir. सिंपल सा तरीका. उसका देखो तरीका सुनो क्या है. देखो पहले गाइस एक चीज समझ लो. देखो क्रिएटिंग अ रूल ये तो सबको समझ में आ गया, लेकिन सेलेक्टिंग अ रूल आपका वो उसमें आपका होमोजेनिटी वाला चीज है, वो समझनी है आपको. उसमें भी दो चीज समझिए. देखो गाइस, इसमें सबसे पहले इसमें पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग आपको बता रहा हूं. एक चीज और है, आपको पहले इसको रफ कर दूं सबको मैं. सॉरी. पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग का ये चीज देखिए जरा. इसमें भी आपको डिसाइड करना है कि लेट्स से यू आर क्रिएटिंग अ रिग्रेशन ट्री और यू आर क्रिएटिंग अ बेसिकली क्लासिफिकेशन ट्री. पहले आपको ये डिसाइड करना है, उसके बाद रूल सेलेक्ट करोगे. क्योंकि जो होमोजीनियस वाला आपका जो होमोजीनिटी वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपका डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि रिग्रेशन ट्री आप बना रहे हो या क्लासिफिकेशन ट्री बना रहे हो. अल्टीमेटली बात हम होमोजीनिटी की ही करेंगे, लेकिन होमोजीनिटी डिपेंड करती है किस तरह का ट्री बना रहे हो आपका. तो आपका मेरे को ये बताओ, जस्ट मिनट. अंकित, कैन यू कम ऑन द लाइन नाउ?
Yes, sir. मेरे को ये बताओ अंकित कि हम जो होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं आपका जो हम लोग, ठीक है, जी तो बताओ रिग्रेशन ट्री और क्लासिफिकेशन ट्री समझ में आ रहा हो क्या होते हैं? जी क्या होते हैं रिग्रेशन ट्री? सर, जिसमें कंटिन्यूस वैल्यू होती है। मतलब मुझे आउटपुट जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से इंटरेस्ट रेट हाँ, मतलब नंबर है, मतलब आउटपुट नंबर है, जो भी है। और आपका क्लासिफिकेशन ट्री का मतलब क्या है कि जैसे इंडिया विल विन और लूज, कोई मेरी Yes or no, पॉलिसी को zero. लेगा या नहीं लेगा, ठीक है, यस नो वाली चीज है ना। तो देखो Yes. सिंपल सी बात है, देखो क्लासिफिकेशन ट्री वाले केस में अगर हम बात करें आपका गाइस, तो देयर आर 3 मैट्रिक्स इज यूज्ड दैट विल डिसाइड द होमोजेनिटी, ठीक है ना। 3 मैट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं? वो आपको मैट्रिक्स होती है आपका गिनी इंडेक्स, एंट्रोपी एंड डेविएंस। कौन कौन सी होती है गाइस? एंट्रोपी, गिनी इंडेक्स एंड डेविएंस, ये हम निकालेंगे गाइस। और इसमें आपका होता है रूट मीन स्क्वायर एरर्स, आरएमएसई, या मीन स्क्वायर एरर्स, बात एक ही चीज है गाइस। अंकित समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. देखो अंकित क्या होता है, देखो मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा, मैं अभी सिंपल से समझो केवल। देखो Okay. रिग्रेशन ट्री बना रहे हैं आपका, और मेरे पास मान लो 2000 रूल्स है आपका, तो उस रूल्स में से कौन सा रूल आपका पर्टिकुलर नोड पे स्प्लिट के लिए सिलेक्ट करेंगे, ये मिनिमम एमएससी की वैल्यू जिस रूल की होगी उस रूल को सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट करने के लिए। आइडिया क्लियर? इफ वी आर क्रिएटिंग अ रिग्रेशन ट्री, प्लीज नोट डाउन इट, if we are creating a regression tree, then the metric MSE or RMSE will decide which rule you are going to select. Okay, so out of 2000 rules, the rule which going to give the minimum MSE value, ये error है ना, E for error, minimum error जो rule देगा उस rule को आप select करेंगे split करने के लिए। In case of regression tree, in case of regression tree, I am repeating once again, the RMSE will be the basically metric. Idea is clear अंकित? Yes, sir. ठीक है, कैसे करेंगे एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। अभी सिंपल से मान के चलो, अगर आप क्लासिफिकेशन ट्री बना रहे गाइस, उस केस में देयर आर 3 मैट्रिक्स डिफाइंड, एंट्रोपी, गिनी इंडेक्स और डेविएंस। यू आर फ्री टू यूज एनीवन, ठीक है, ठीक है अंकित। और Okay, जनरली क्या करना है आपको, जब देखो ये आपको करना कुछ नहीं, आपको देखो कोड लिखना है केवल, ये इंटरनली प्रोग्रामिंग हो, अपने आप कैलकुलेट कर देगा, लेकिन आपको आइडिया समझ आना चाहिए कि इंटरनली हो क्या रहा है। आइडिया क्लियर Yes, sir. अंकित? आइडिया क्लियर हो गया ना पूरा? अब देखो जरा, Yes, sir. इफ दिस आइडिया इज क्लियर, तो हम लोग अब स्लाइड पे चलते हैं, वापस स्लाइड पे देखते हैं जरा, आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो जरा, नेहा कैन यू यूज नेहा कैन यू यूज बेसिकली माइक? यस सर। अब नेहा देखो, मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ मैथमेटिकल चीज है, और प्लीज, और इतना मैथमेटिकल भी नहीं है, सिंपल आपका कैलकुलेशन करनी, कुछ नहीं करना है ऐसा कुछ, ठीक है ना। ओके। अब देखो सपोज करो कि एट ए पर्टिकुलर मूवमेंट आपका नोड ये था, मान लो ये नोड था आपका, ठीक है नेहा। इस नोड में मान लो ओके सर। 0 एक क्लास है आपका, 1 एक क्लास है, ओके सर। और आपने मान के चला कि n0 नंबर ऑफ मींस n0 मींस number of zeros how many? 6. Number of ones how many? 6. And P0 P1 basically is a proportion, out of 12 points, 12 points है नोट के अंदर, 6 is 0 and total is 12. P1 भी 6 है, total is 12. ओके। 0.5 0.5, ठीक है। आइडिया इज क्लियर? यस सर। देखो लिस्ट में लिखा हुआ है, देखो, आउट ऑफ द डेटा पॉइंट्स पी के इन व्हाट द प्रोपोर्शन ऑफ पी ऑफ डेटा पॉइंट्स इन पर्टिकुलर क्लास के की वैल्यू यहाँ पर 0 है और 1 है, 0 क्लास और 1 क्लास, ठीक है ना। n के इज द नंबर, p के इज द प्रोपोर्शन। दिस डेफिनेशन इज क्लियर? यस सर। अगर मान लो यहाँ पर ये 1 2 3 4 तो ये होते आपका, और 1 2 3 4 5 6 मान लो ये होते, तो देखो p0 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 4/10, 10। p1 की क्या थी 6/10। 6/10, n0 क्या था N0 4।
4 n1 क्या था 6. 6. तो आई थिंक दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो, तो इसको हमें इसी तरह के नोट को स्प्लिट करेंगे. आगे कैसे करेंगे देखते हैं जरा. अब देखो, नया बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा ध्यान रखना. देखो, पहली चीज देखो, जो बताया मैं, ये आपका देखो, अगर क्लासिफिकेशन ट्री है, देखो दोबारा सुन लो. नया एक क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि रूल क्रिएट करने के लिए मुझे आउटपुट वेरिएबल का टाइप पता होना चाहिए या नहीं. तो उस केस में आंसर होगा नहीं. रूल क्रिएट करते समय आपका आउटपुट वेरिएबल आपका क्लासिफिकेशन वाला या रिग्रेशन वाला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन द मोमेंट रूल सेलेक्ट करने हैं, उस केस में मुझे पता होना चाहिए कि मेरा आपका क्लासिफिकेशन ट्री बना रहा हूँ या डिसीजन ट्री के हिसाब से, या रिग्रेशन ट्री बना रहा हूँ मैं. अगर मैं क्लासिफिकेशन ट्री बना रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर नोड को स्प्लिट करने के लिए जो रूल लूंगा आपका, या तो मैं एंट्रोपी वाला क्राइटेरिया लगाऊंगा उसमें, या डेविएंस वाला क्राइटेरिया लगाऊंगा, या उसमें गिनी वाला क्राइटेरिया लगाऊंगा. ठीक है. अगर आपका Okay. रिग्रेशन ट्री बना रहा होगा, उस केस में क्या लगाऊंगा मैं, रूट मीन स्क्वायर एरर. ठीक, आइडिया क्लियर? Yes, sir. अब देखो जरा, n0 p0 ध्यान रखना उसकी वैल्यू. अब देखो, एक मैं आपको सिंपल सा एंट्रोपी वाला एग्जांपल सबके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको. देखो नियम में एंट्रोपी की वैल्यू आपको निकल के आती है माइनस सिग्मा k इक्वल टू वही 0 to 1. दो क्लासेस ना, क्लास 0 एंड क्लास 1, और यहाँ पर Yes, sir. pk log pk. ठीक है. तो आप देखो यहाँ पर क्या है, माइनस k की वैल्यू जब 0 होगी तो ये हो जाएगा p0 log p0 प्लस p1 log p1. नया समझ में आता है चीज? k की वैल्यू रखी Yes, है sir. उसने. ठीक है. अब देखो हाँ. माइनस, इस वाले केस को ही लेने आपका. तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखी थी कि n0 क्या था आपका 6, n1 क्या था 6, 6. p0 क्या था 6. 6/12 दैट इज 0.5, p1 क्या था 0.5. 6/12 0.5. 0.5. तो वैल्यू यहाँ पे रखनी है. वो देखो p0 की वैल्यू क्या है 0.5 0.5. 0.5 Log P0. प्लस 0.5 p1 plus. 0.5 log 0.5. ये चीज है देखो यहाँ पर. ठीक है ना? Yes, sir. और सॉल्व होके आपको सॉल्व नहीं कर रही है, केवल सिंपल समझ लो. सॉल्व होके मान लो ये वैल्यू आ गई 0.069. 6.9. ठीक है. ये सॉल्व तो कैलकुलेटर कर देगा आपसे. सिंपल माने चलो, बस मैथमेटिक्स समझ में आ रही है ना क्या क्या हो रहा है. Yes, sir. ऐसे ही आपका देखो, अगर डेविएंस निकालना है, देखो एट ए टाइम केवल एक ही यूज करोगे प्रॉब्लम के अंदर. ये आपको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा कि डेविएंस करना है, एंट्रोपी करना है या गिनी करना है. आपको कैलकुलेट कहीं नहीं करना है, कंप्यूटर आपके लिए करेगा. लेकिन आप चाहो कि एक ही प्रोग्राम के अंदर दोनों चीज कर लो, तीनों चीज कर लो, नहीं हो सकता है. और दूसरा चीज, Okay. कोई किसी से बेटर नहीं है. यू जस्ट डिसाइड एक मुझे यूज करना है. ठीक है. अगर डेविएंस निकालना हो, डेविएंस का फॉर्मूला देखो क्या है. डेविएंस का फॉर्मूला है सिग्मा k इक्वल टू 0 to 1 n k log pk. Log PK. इसको समझा रहे हो. देखो, तो माइनस ये हो गया. n0 की वैल्यू क्या है, n0 log p0 प्लस n1 log p1. ठीक है. Yes, sir. इसी तरह आपका देखो, अब तो कैलकुलेट कर लोगे चीज कैसे आई. इसी तरह गिनी इंडेक्स की वैल्यू देखो क्या है, 1 माइनस सिग्मा k इक्वल टू 0 to 1 pk स्क्वायर. ये नथिंग बट बेसिकली ये हो जाएगा माइनस p0 स्क्वायर और आपका प्लस p1 स्क्वायर होल माइनस है. ठीक है ना? Okay, sir. ठीक है. तो ये चीज समझ में आ गई. Yes, sir. ये कब है आपका. अब आप देखो सिंपल सी देखो, नया मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूं मैं, कि जब आपका नंबर ऑफ क्लासेस, आपका जो पॉइंट्स है फॉर बोथ क्लासेस इज सेम, उस समय 0.69 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है. ठीक है नया. Yes, sir. अब इस फॉर्मूले को कॉपी पे लिख लो. इस वाले को, इस वाले सब लोग फॉर्मूले को लिख लो कॉपी पे. माइनस सिग्मा पी के लॉग पी के. जब इस वाले एग्जाम्पल के लिए टोटल 12 पॉइंट से बराबर क्लासेस थी 66, तो 0.69 वैल्यू आई है. नया नोट कर लिया ये वाला. Yes, sir. ये कर लिया. कर लिया नोट. अब देखो नेक्स्ट स्लाइड जाता हूं. देखो मैं, अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड जाता हूं. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी. इस केस में क्या है नया, पूरा होमोजीनियस 100% होमोजीनियस है कि नंबर ऑफ क्लास 1 के पॉइंट सब 0 हो गए. Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है, सब 0 हो गए. अगर इस केस में बात करूं, Yes, p0 की sir. वैल्यू क्या होगी, n0 की वैल्यू 8 होगी.
ऑल 8 पॉइंट्स बिलोंगिंग टू दिस। Eight. P0 की वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शन 100% प्रोपोर्शन इसी का 0 वाले का 1 हो जाएगी। Yes, sir. P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कोई पॉइंट ही नहीं है, N1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जब 50-50% था, जब 50-50% दोनों क्लासेस थी, उस केस में ये एंट्रोपी की वैल्यू 0.69 थी, ध्यान आ रहा है। 0.69. Yes, sir. जब 100% आपका पूरा होमोजिनिटी आ गई, उसमें एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो गई है, 0. डेवियंस की वैल्यू क्या हो गई है, 0. इसमें भी 0। तो कहने, और लास्ट स्लाइड में तो दोबारा चाहता हूं, देखो जरा, आप किसी को भी मैच कर लो, अगर एंट्रोपी को मैच कर रहे हो 0.69 से 0 हुई है, अगर आप क्या करेंगे, डेवियंस को 0 कर रहे हो तो 8.28 से 0 हुई है। सिंपल सा, देखिए होमोजिनिटी आपका 0 हो गई, 0 आपका मतलब 0 मीन्स होमोजिनिटी वाली बात कर रहा हूं मैं। तो क्या ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं आपका कि अगर मैं क्राइटेरिया रखूं आपका कि एंट्रोपी की वैल्यू जितनी मिनिमम से मिनिमम होगी, होमोजिनिटी लेवल उतना ज्यादा होगा। नहीं, व्हाट यू से? सर एक बार रिपीट कीजिए जो आपने अभी स्टेटमेंट बोला ना। वो स्टेटमेंट ऐसे समझिए कि जब 50-50% चांसेस थे, होमोजिनिटी नहीं थी उसके अंदर, तब 0.69 आपका इंडेक्स था एंट्रोपी वाला, ठीक है ना। यस सर। अब 0 हो Yes, गया sir. जब आपका 100% आपका, मैंने एक मेजोरिटी मान ली है क्लास की, तो कहने का मतलब अब मेजोरिटी क्लास का मतलब क्या है, होमोजीनियस है पूरा 100% नेचर। यस सर। तो कहने क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि as basically decrease the entropy, maybe Gini index or deviance, the homogeneity level will increase। यस सर। ठीक है ना। यस सर। 0.69 से 0 हाँ हो रहा जी। है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें उस रूल को सेलेक्ट करना है जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे मिनिमम आपका एंट्रोपी मिले, सबसे मिनिमम डेविएंस मिले, यस सर। सबसे मिनिमम Variance ग्रीन मिले और इंडेक्स मिले। गिनती। आइडिया Yes, sir. क्लियर? आई थिंक Yes, sir. दिस इज क्रिस्टल क्लियर ना। Yes, तो sir. इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि डिसीजन ट्री में जो रूल्स बनाते हैं, क्या वो रूल्स का बनना उस डिसीजन ट्री के आउटपुट डिपेंड करता है कि नहीं करता है, कि वेदर यू आर क्रिएटिंग अ डिसीजन ट्री फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। आप बोलोगे नहीं, बनाते समय नहीं मुझे करता। आउटपुट से मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जब मुझे सेलेक्ट करना हुआ तो मुझे देखना होगा कि गिनी डेविएंस वगैरह यूज कर रहा हूं मैं, दैट मीन्स मैं क्लासिफिकेशन ट्री बना रहा हूं। अगर मैं रूट मीन स्क्वायर एरर आपको बात कर रहा हूं तो मैं क्या रिग्रेशन ट्री बना रहा हूं। आइडिया इज क्लियर? ओके। ओके सर। क्लियर है? ऑल क्लियर तो नहीं है नया? नहीं, ऑल क्लियर नहीं है सर। ठीक है, चलो अब अंकित जरा आओ, आप आओ, आपका नंबर आ गया है। यस सर। आइडिया क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है सर। ऑल क्लियर तो नहीं बेटा? नहीं नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये आएगा कि बेटा ये बताओ कि आपका मैं क्लासिफिकेशन ट्री बना रहा हूं मैं, तो क्लासिफिकेशन ट्री बनाने वाली ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे रहा हूं मैं, दिस इन्फॉर्मेशन रियली यूजफुल व्हाइल क्रिएटिंग द रूल्स, व्हाट विल बी योर आंसर? सर विच इंफॉर्मेशन सर? मैं क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री बना रहा हूं, क्या ये इन्फॉर्मेशन वास्तव में जी। जरूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए कि जब मैं रूल्स क्रिएट कर रहा हूं? नहीं सर। यस, रूल्स सेलेक्ट करते समय जरूरी है। यस। क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी तो मैं, अगर मान लो तभी तो मैं डिसाइड करूंगा मैं, अगर क्लासिफिकेशन है तो इन तीनों में से कोई लगा लो, गिनी डेविएंस या क्या या एंट्रोपी में से, ठीक है। और अगर रिग्रेशन है तो मैं रूट मीन स्क्वायर लगाऊंगा मैं। आइडिया क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी आरएमएससी बताया नहीं मैंने, अभी तो केवल जस्ट क्लैरिफिकेशन था, वो आरएमएससी का एग्जाम्पल आने वाला है। आइडिया क्लियर गाइस? ओके सर। आइडिया क्लियर हो गया अंकित? देवेश, जी सर। कॉमन द माइक। यस सर। आइडिया क्लियर है? सर ये वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये जो दोनों से एक में तो 0 निकल रहा है और एक में ये 0.69 निकल रहा है, तो अपन इसमें से कौन सा अडॉप्ट करेंगे, ये थोड़ा पता नहीं चल रहा। क्यों यार, अभी स्टार्टिंग में आपसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 30 वाला, 31 वाला, 32 वाला, 33 वाला, उसमें कौन सा नोड आप सेलेक्ट करोगे डिसीजन लेने के लिए? सर उसमें तो अपन है ना, क्या कहते हैं, 30 वाला अटेंड कर, वो अडॉप्ट वो लेंगे मतलब। हाँ, तो वही इसका मतलब बीच में तो उठ के कहीं गए हो, इसलिए गड़बड़ हुआ है, और कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया था। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि 30, 31, 32, 33,
इसमें से ये वाला बेस्ट नोड है डिसीजन लेने के लिए, तो इसकी एक डेफिनेशन होता है। इसका मतलब Yes, क्या है, sir. ये होमोजीनिटी इसमें 100% है। यस ये सर। एक ही तरह की क्लास है। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था, Okay, sir. जब ये 50% आपका क्लास है, आपका चांसेस है, उसमें कुछ वैल्यू है 69.69, और जब मैं 100% एक क्लास को देता हूं मैं आपका, तो उसमें वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मीन्स होमोजीनिटी आपका इंक्रीज कर रही है जब एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। ओके सर। क्या इस केस में देख लो, डेविएंस डिक्रीज कर रहा है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द होमोजीनिटी लेवल, गिनी इंडेक्स इज डिक्रीजिंग व्हेन होमोजीनिटी लेवल इंक्रीजिंग, रिवर्स है। आइडिया क्लियर हो गया? यस सर। इसलिए क्या कहते हैं बिल्कुल हम सर। लोग, अब आप इसे आप कहीं उठ के गए थे, आप या आपने थोड़ा 2 मिनट की ध्यान आपका उधर उधर हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ है। आइडिया क्लियर? नहीं वो सर, हाँ क्लियर हो गया सर। बस मुझे यही थोड़ा सा वो कंफ्यूजन था कि जैसे उसके अंदर अपन ने 30 वाला वो नोट्स के थ्रू ले लिया था ना, तो मुझे इसमें ये समझ में नहीं आ रहा था अपन ये जो ऊपर आप ले रहे हो ना 00 और 111, तो ये किससे अपन रिलेट कर रहे थे? अरे वो 0 0 उसका 1 समझ में 1 नहीं तो आ रहा। यस और नो के हिसाब से कोई क्लासेज हैं तो ठीक है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो देखो हम आरएमएससी वाला कर लेते हैं। जी सर। अब आरएमएससी वाला देखो गाइस, ये गाइस कर ही लिया हम लोगों ने, वाला फॉर्मूला है ना। दो गाइस यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो अंकित 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 आर यू देयर? Yes, sir. ये देखो लिखा भी हुआ है, Yes, देखो sir. द लोअर द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डेविएंस ऑफ गिनी, द मोर होमोजीनियस और प्योर द नोड इज और बेटर द स्प्लिट इज। ठीक है ना? Yes, sir. The algorithm tries to minimize the value of entropy deviance of Gini and makes a split whether this value is lowest. ठीक है? This is the keyword lowest. जी. ठीक है ना? चलिए अब देखो रिग्रेशन ट्री। अंकित रिग्रेशन ट्री में और उसमें अंतर क्या बता सकते हो? इसमें सर रिग्रेशन ट्री और क्लासिफिकेशन ट्री का एग्जांपल अभी हमने देखा था। रिग्रेशन ट्री का एग्जांपल मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं मैं, टेबल, इसमें रिग्रेशन ट्री का एग्जांपल है। क्यों रिग्रेशन ट्री बोल रहे हैं इसको? सर ये है ना सर, मतलब जो आउटपुट वैल्यू है वो न्यूमेरिकल है, और ये देखो इंटरेस्ट रेट इज आउटपुट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। ये आपका न्यूमेरिकल है, इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट कर रहे हो आपका। और मुझे x1 x2 की, ये देखो एक तरीके देखा जाए ये y है मेरा, ये x1 x2 है। x1 x2 x3 अब x की कुछ भी होती रहे, चाहे कैटेगोरिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि y की वैल्यू क्या है। ठीक है? यस तो इसमें आप मान के चलो सिंपल डेटाबेस दे रखा है आपका कि एक तो एज दे रखा है और अकाउंट टाइप दे रखा है और उसका इंटरेस्ट रेट आपका बता रखा है इन्होंने। एज आपका दे रखा है इन्होंने 25 है, अकाउंट टाइप ए है, इंटरेस्ट रेट 6.5 है, एज आपका ये है। तो मैंने आपको रूल कैसे क्रिएट करते हैं बता दिया था ना मैंने। इसमें तो स्प्लिट हो गई एक तरीके से फिल्टरिंग बेसिस पे। क्यों अंकित? जी। फिल्टर होगा इसमें तो। हाँ सर। इसमें क्या होगा, पहले हम सॉर्टिंग करेंगे, फिर हम रूल बना देंगे एज ग्रेटर देन 25 है क्या, एज इज ग्रेटर देन 28 है क्या, एज इज ग्रेटर देन 42 है क्या। इस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे अंकित? यस सर। ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाली है, देखो जरा इसकी। अंकित ये चीज समझ में आ रही है? देखो जरा क्या, हाँ सर, कहीं थोड़ी बहुत आ रही है सर समझ में। क्या समझ में आ रही? थोड़ी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई, बताओ क्या हो रहा है इसमें। सर इसमें डिसीजन ट्री बनाया सर, इसके अंदर भी, और देखो हमने देखो अंकित देखो पिछले वाले एग्जांपल में मैंने 0 1 आपका लिया था, आउटपुट में यस नो लिया था। इस केस में यस नो तो है नहीं, वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज डायरेक्ट में लिख ली है 6.5 10 12 8 9.5 10.5 8.5, ये हो गया एक तरीके से। जी। सभी वैल्यूज लिख ली मैंने अंकित। हाँ सर।
अब मैंने क्या किया है कि एक सिंपल सा रूल मान के चलो भी ले लिया मैंने, एज इज लेस देन इक्वल टू 30 और एज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पर मैं गया 6.5 के करस्पॉन्डिंग मैंने देखा एज यहाँ पर क्या 25 है, ये लेस देन आपका 30 है, तो 25 वाला देखो 6.5 वाला है, ये यहाँ पर आ गया देखो 6.5 25 सेम है ना आपका, यहाँ 6.5 आ गया यहाँ पर। फिर एज इज आपका देखो 28 है आपका एज, ये भी लेस देन है, इसके करस्पॉन्डिंग 10 है, 10 यहाँ पर आ गया अंकित। फिर देखो ये 8 आ रहा है, 8 कैसे आ रहा है, क्योंकि एज यहाँ पर 23 थी, ये 42 क्यों नहीं आया, एज इज ग्रेटर देन 42 है, 12 आपका इधर आया है देखो। अंकित आइडिया इज क्लियर, ओके सर, दिस स्प्लिट इज ओके क्लियर, सर, दिस स्प्लिट इज बेस्ड अपॉन एज इज ग्रेटर देन 30 और लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। जी सर, ये चलिए बताइए। अच्छा अंकित ये बताओ कि सपोज करो कि आपका 10 लोग हैं, 10 लोग आपके दोस्त हैं, ठीक है, हेलो, जी 10 लोग आपके दोस्त हैं और आपने कोई भी मॉडल नहीं बनाया, आप सिंपल सा पूछ रहे हो कि कल की मैच में इंडिया जीतेगी हारेगी, तो कोई बंदा बोलेगा यस, कोई बंदा बोलेगा नो। अब कलेक्टिव आपका पूरा उनका रेस्पॉन्स नोट करने के बाद आपको बताना पड़े कि भाई इंडिया कल जीतेगी हारेगी, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? कोई मॉडल नहीं बना रहे हो, सिंपल आपको डिसाइड कर रहे हो लेमन लैंग्वेज में, कैसे करोगे? सर यूनिटी देख लूंगा कि कितना परसेंट यस कितना ज्यादा आ रहा है और नो यस, इसको दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि मेजोरिटी डिसीजन ले लूंगा सर मैं, मेजोरिटी मतलब, हाँ यस सर, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन यस द्वारा समझ लो, क्लासिफिकेशन ट्री में अगर कोई भी मॉडल आपने नहीं बनाया हो, लॉजिस्टिक या डिसीजन ट्री कुछ भी नहीं बनाया हो, और सिंपल सा लेमन की बात कर रहे हो, तो उसमें मेजोरिटी वाला जो मॉडल होता है वो आपका लेमन बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है। ओके सर, इसी तरह आपका अगर मान लो इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्ट करना है, मैंने कोई मॉडल नहीं बनाया, लीनियर रिग्रेशन नहीं बनाया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, डिसीजन ट्री कुछ भी नहीं बनाया, तो मेरा आपका बेसिक मॉडल क्या होगा, लेमन मॉडल क्या होगा? ये मैं बता चुका हूं लीनियर रिग्रेशन में, ध्यान रखना चीज का। नेहा, कैन यू कम ऑन द माइक? नेहा, यूज योर माइक। यस सर। मैंने आपका क्वेश्चन समझ में आया? देखो, जब आपका मान लो 5 लोग हैं आपके फ्रेंड हैं और आपका यस Yes, नो में sir. आपका डिसाइड करना हो, तो मेजोरिटी पे डिसीजन लेते हो। इसका कहने का मतलब क्या हुआ Yes, कि sir. मान लो सपोज करो लेमन में, बिल्कुल बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, when there is no mathematical model, nothing is there, so generally you go with the common sense, and common sense is in this case is go with the majority, है ना। वो है ना कॉल अ फ्रेंड, आपका पोल ऑडियंस पोल्स आता है ना, बस कि कौन बढ़ेगा करोड़पति में, Yes. तो ये होता है मेजोरिटी पे जाओ, नथिंग इज देयर, गो फॉर Yes. मेजोरिटी। ये तो हो गया Yes, sir. क्लासेस के फॉर्म में जाना हो। जब मुझे इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट करना है, उस केस में कोई मॉडल बनाना नहीं चाहता हूं मैं, तो ले मैन बेसिक मॉडल आपके दिमाग में क्या आता है? एंड आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड टू ऑल ऑफ यू पीपल। मैंने आपका लीनियर रिग्रेशन में जब मैंने आपका आर स्क्वायर का डेरिवेशन कराया था, उस समय बेस मॉडल आपका एवरेज मॉडल बताया था, नहीं बताया था मैंने? बताया था नहीं? एवरेज मॉडल। हाँ बताया था ना, एवरेज मॉडल। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कोई मॉडल नहीं बनाना हो, तो एवरेज ले लो सबका, आउटपुट का वो आपका वो हो जाएगा। अगर मान लो सपोज करो क्या करेंगे, मैं आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बतानी है कि आपका सैलरी क्या है इस बंदे की, या तो सबकी सैलरी बता Yes, तो बता sir. दोगे, नहीं तो क्या करते हैं, एवरेज ले लो सर सबका, और जो एवरेज है वो उसकी सैलरी है। यस सर, आपने बताया था। बताया था, तो इस केस में एवरेज लेंगे नहीं लेंगे? यस सर। तो सिंपल सा बात क्या हुआ, अगर कोई मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है, क्लासेस के बेसिस पे आप काम कर रहे हो, तो मेजोरिटी विल बी द प्रेडिक्टिव मॉडल, प्रेडिक्शन बेस्ड अपॉन द मेजोरिटी। Yes. और आपका Yes, sir. अगर कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में बात कर रहे हो, तो इस केस में आपका एवरेज आपका विल बी द प्रेडिक्शन मॉडल फॉर द कंटिन्यूस वेरिएबल। यस सर। तो ठीक है, इस केस में देखो जरा नहीं, इस केस में देखो, जो आपका मैंने ये बना रखा है ना, ये वाला जो सर्किल कर रहा हूँ, देखो जरा सर्किल समझ में आ रहा है? इस वाले नोड का प्रेडिक्शन क्या होगा, इस सबका एवरेज 8.7, 8.7। ठीक है ना। इस वाले नोड में प्रेडिक्शन क्या होगा, यस सर। इस वाले नोड में प्रेडिक्शन क्या होगा, 11.33। इसका एवरेज, ठीक है। यस सर। इसका एवरेज क्या होगा, 12 प्लस 9.5 प्लस
12.5। जब कुछ नहीं होता है तो एवरेज या मतलब मैक्स मॉडल, मेजॉरिटी बेस। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, और गाइस और किसी की भी ब्रेक हो रही, मेरी हो रही है केवल? नाइस। देवेश, धनंजय। हेलो सर। हाँ सर, आपकी ब्रेक होती है सर बीच बीच में थोड़ी। अच्छा, ब्रेक हो रही है, चलो मैं दूसरा माइक यूज करता हूँ, चलो ठीक है ना, ओके। Voice is audible, guys? Please quickly confirm my voice is audible. Yes. Ankit. यस सर। यार एक who is missing now? एक कौन कम हो गया? एक सेकंड सर, कोई कम नहीं है सर। कोई कम नहीं है, तो 4 ही लोग, टोटल बैच में 6 लोग हैं। अच्छा, 6 में से 2 एब्सेंट आ जाए ना। जी, चांदनी, मुमल और अभिषेक, 7 लोग इनफैक्ट, 3 लोग हैं। 3 लोग एब्सेंट हैं। ठीक है, तो गाइज अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ गया पूरा? अंकित हाँ पूरा सर। समझ में आ रहा है पूरा कि एवरेज क्यों ले रहे हैं हम लोग? जी। समझ में आ रहा है ना ये? जी। दोबारा सुन लो, कोई अगर आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि अगर मान लो कोई मॉडल नहीं बनाना है मुझे, कॉमन सेंस बेस्ड मॉडल आपका, अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है इसका मतलब क्या होगा? एवरेज ले लो सर। और आपका अगर मान लो क्लासेस का है तो मेजॉरिटी क्लासेस की बेसिस पर डिसीजन ले लो। यही होता है ना कॉमन सेंस बेस्ड कैलकुलेशन? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा एरर क्या होती है। देखो एरर ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ये वाला? अंकित, इफ आर ऑनलाइन, दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू? बता रखा है ना मैंने, ये तो वाला एस्टिमेट वैल्यू माइनस प्रेडिक्ट वैल्यू है ना। ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। ये प्रेडिक्टेड वैल्यू आपका, अगर मान कोई मॉडल नहीं तो उस केस में एवरेज होती है, इसलिए एवरेज है। ठीक है ना, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। ओके। तो हमें क्या करना है? मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जरा इसके एग्जाम्पल से चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियर। देखो जरा एक एग्जाम्पल देखो जरा। यस, देवेश, कैन यू कम ऑनलाइन? देवेश, आर यू देयर? यस सर। देवेश, अब देखो जरा देवेश, देखो ऐसा है कि एक रूल मैंने लगाया है यहाँ पर। ये सपोज करो एक रूल लगाया मैंने, जस्ट अ मिनट। देखो इधर देखो, एक रूल लगाया मैंने R1 यहाँ पर, एक रूल लगाया R2 यहाँ पर। अब मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से रूल को सेलेक्ट करना है उसके लिए। ठीक है ना, अगर देखो मैं R1 रूल लगाता हूँ, मान लो ये नोड था मेरा स्टार्टिंग चला आपका, और R1 के रूल लगाने की वजह से सपोज करो स्प्लिट इस तरह से हुई कि ये वाले जो इधर आ गए, मान लो सब रूल कुछ, मान लो अगर ये एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज करो, तो कुछ रूल इस तरह का रहा होगा कि एज इज ग्रेटर देन 10, तो ये वाला उधर आ गए, ये उधर आ गए। देवेश समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो पार्टीशनिंग, ये 5 आपका ऑब्जर्वेशन थे, 5 रो थी, पार्टीशन हो गए, 3 तो इधर आ गई और 2 इधर आ गई। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा इस केस में प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा? एवरेज 10 + 10 + 10 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसमें एरर निकाली, एरर कैसे निकलेगी? 10 तो क्या कहते हैं एवरेज था वो, और ये 10 आपका, ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट ले लिया आपने, ये वाला 10 - 10 0। फिर आपने दूसरा पॉइंट लिया ये वाला, और दूसरा पॉइंट ये वाला लिया आपने, और ये वाला 10 आपका एवरेज निकाल दिया, ये 0। इसी तीसरा पॉइंट लिया आपने, तीसरा पॉइंट ये वाला हो गया, और ये तीसरा एवरेज आपका निकाल दिया, ये 0 एरर आ गई इस वाले केस में, ये एरर आई इस वाले केस की। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो इसका एवरेज क्या होगा? 15 + 15 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वो एवरेज, ये पहला पॉइंट आपने लिया 15, ये यहाँ आ गया,
दूसरा पॉइंट आपने यहाँ लिया, यहाँ आ गया ये तो ठीक है। अब देवेश प्लीज बैकग्राउंड नॉइज कम करो यार, yes, sir. ठीक है। अब देवेश देखो जरा, देवेश चलिए, धनंजय Yes, sir. Yes, sir. या तो बैकग्राउंड में आपका साउंड कम करो या फिर दूसरे से बात कर लेता हूं मैं। धनंजय कैन यू कम ऑन माइक? धनंजय यस सर, यस सर, ये समझ में आ गया बेटा कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन हुई है वाली टेबल निकाल, समझ में आ गई ये वाली कैसे आई है? यस सर, यस सर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें ओवरऑल सम एरर देखनी है उस वाले की। आफ्टर पार्टीशनिंग दो नोड बने तो दोनों नोड की मुझे एरर देखनी पड़ेगी। पहले नोड की दूसरे नोड की सम कर सकता हूं मैं, यस सर, ठीक है ना? आइडिया इज क्लियर? यस सर, चलिए ये तो ये हो गया। ऐसे ही आपका देखो, अब इस वाले रूल 2 को देख लो, R2 वाले को देखो। मान लो कोई R2 का रूल इस तरह का रहा होगा, जो भी रूल रहा हो आपका, उसकी वजह से क्या कहते हैं आपका ये 2 पॉइंट तो इधर आ गए और 3 पॉइंट इधर आ गए। इन दोनों का प्रेडिक्शन एवरेज क्या होगा? प्रेडिक्शन क्या होगा? 10 + 15 डिवाइड बाई 2, यस सर, 12.5। है ना? अब देखो एरर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये पहला 10 पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर, माइनस द प्रेडिक्शन 6.25 एरर आ गई, यस सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट 15 था, माइनस एरर 6.25 आ गई, 13 हो गई आपका ये वाली Yes, एरर, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, इस केस में क्या है देखो, प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा इस केस में? 10 + 15 डिवाइड बाई 3 11.6। अब देखो पहला 10 उठाया आपने, यहां रख दिया, ये 2.75। दूसरा उठाया आपने, यस सर, यहां रख दिया, तीसरा आपने यहां रख लिया। अब दोनों कंबाइंड आपका एरर आ गई। अब देखो ऑब्वियसली R1 एक रूल था, उसकी वजह से एरर आपके पास है, R2 एक रूल था, उसकी वजह से एरर आपके पास है। कौन सा वाला रूल सेलेक्ट करोगे स्प्लिट करने के लिए? सर R1। R1, ठीक है गाइस। अगर आप सब लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज राइट ऑन द चैट विंडो, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो गाइस। सर लेकिन जब रियल लाइफ एप्लीकेशंस होंगे उनमें तो मतलब एरर 0 नहीं आएगा। हाँ तो नहीं आएगा वो ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है ना, हमने तो केवल बस मिनिमम एरर वाला ही सिलेक्ट करेंगे दो में से। मिनिमम एरर वाला सेलेक्ट करेंगे, बस एक एग्जांपल लिया है वो तो इत्तेफाक से एग्जांपल ऐसा ले लिया है कोइंसिडेंटली, 0 दिखा रहा है, उससे हमें फर्क क्या पड़ता है? ओके, ठीक है, यस सर, idea is clear? If idea is clear, Yes, sir. can I move further? यस सर, तो देखो ये लिख भी दिया था, regression tree on the left has less errors as compared to the other, है ना? So we will go for the left tree and left tree basically is formed by the rules R1, ठीक है? ठीक है गाइस? यस सर, अच्छा गाइस, अब देखो जरा, देखो आपको पता है जो आपका ये डिसीजन ट्री होता है, उसका ड्रॉबैक क्या है? नहीं देखो डिसीजन ट्री आपका, भले ही आपका क्लासिफिकेशन ट्री हो या रिग्रेशन ट्री हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिंपल सी बात देखो, व्हेन यू कंपेयर डिसीजन ट्री विद लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, so there is a limitation over here. Is here the requirement is with the relationship must be a linear, then you can expect a good result by using a linear regression or maybe by using a logistic regression. But most of the time in ideal case scenario, linear regression will be linear relationships will be there, but in practical scenario very rare, very rare that you are going to have a data set where is a linear relationship. Some amount of non-linearity always there. So when there is a non-linearity and when you start applying linear model, maybe a linear regression, logistic regression, result will not be perfect. So in that case, basically suggested go for the decision tree. Decision tree basically is the good in a sense. See, one very interesting thing about decision tree, the advantage of the decision tree also is its disadvantage as well. जो डिसीजन ट्री की एडवांटेज है गाइस, वही उसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। रीजन क्या गाइस इसका? देखो सिंपल सा, डिसीजन ट्री मैंने आपको बताया ना कि लीनियर रिलेशनशिप को तो एक्सप्लेन करता ही करता है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप को भी वो आपका ये कैप्चर कर लेता है डेटाबेस में से और मॉडल बना देता है। आइडिया इज क्लियर अंकित? आइडिया इज क्लियर? आइडिया क्लियर ना देवेश?
आइडिया क्लियर, चलो ठीक है। तो अब आपको देखिए ड्रॉबैक क्या गाइस इसका, देखो ड्रॉबैक इसका ये है, देखो अच्छा ये बताओ गाइस, एनीवन कम ऑन द माइक प्लीज, एनीवन कम ऑन द माइक, I want some I want to discuss some concept and I want someone Yes, sir. voluntarily should come. आप आ गए, कौन, धनंजय? यस सर। धनंजय अब बेटा ये बताओ मेरे को कि आपने एक्सेल में फिल्टरिंग की है? नहीं सर। फिल्टर का मतलब समझते क्या होता है? हाँ यस सर, जो आपने किया था फिल्टर कमांड डेटा प्रिपरेशन के टाइम। जैसे सिटी वाले कॉलम थे ना, मान लो 1000 कॉलम है, यस सर, यस। 1000 रो है, सॉरी 1000 में से, और मान लो सिटी एक कॉलम है आपका, मान लो आगरा वाले एम्प्लॉय निकाल लिए तो 400 मान लो 400 एम्प्लॉय तो 400 रो हो जाएंगी, यस सर। ठीक है ना? तो फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि केवल आपका डेटाबेस में आपका नंबर ऑफ कॉलम तो सेम रहेंगे बट नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी, फिल्टरिंग ये होती है, यस सर, ठीक है? यस सर। अगर आप फिल्टर पे फिल्टर 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 लगाते रहो तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, यस सर। ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि आप अपना डिसीजन ले रहे हो आपका, ठीक है? अगर लीफ नोड आपका मान लो डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो 10-15 डेप्थ के बाद लीफ नोड आपका आता है, सपोज करो गाइस, तो उस केस में क्या Yes. होगा, उस केस में क्या होगा, डेटाबेस का साइज तो बहुत कम रह चुका होगा। यस सर, लेकिन प्रोसेसिंग लंबा हो जाएगा। अरे सुन तो लो पहले, डेटाबेस का साइज बहुत कम हो गया होगा, यस सर। ठीक है? तो अब मैंने आपको ये बताया था कि लीफ नोड आपका लीफ नोड ही नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग नोड भी है, यस सर। और डिसीजन आपका मेकिंग नोड आपको कम मिल रहे हैं जब आपका डेटाबेस का साइज बहुत कम हो गया है। यस सर। तो आप इस तरह मान के चलो कि डेटा सेट तो बहुत बड़ा दे रखा था आपने, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आया ना आपका, तो आपका डेटा सेट का साइज बहुत कम बचा हो, आप उसमें से डिसीजन ले रहे हो। ओके सर। तो क्या ये जनरलाइज हो पाएगा, जो अनसीन डेटा आएगा उसके लिए क्या काम कर पाएगा क्या? सर काफी मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि इसको इस तरह समझो कि एक तो क्या होता है कि सपोज करो कि आपका जनरली अक्रॉस द ग्लोब आपका ये होता है ना कि आपका, हम लोग मान के चलते हैं कि इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, इनका लॉजिक बहुत अच्छा होता है, ये वर्ल्ड प्रूवन चीज है आपका ये, यस सर। ठीक है ना? एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कहते हैं, आपका मान लो एक दो, और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई खराब इंजीनियर्स नहीं होते हैं, मान लो कोई खराब इंजीनियर मिल जाए, इसकी प्रोग्रामिंग बहुत खराब है, उसके बेसिस पे कोई Yes, डिसीजन उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ले ले तो मॉडल तो बेकार ही होगा ना। यस सर। मॉडल क्या होना चाहिए कि जो जनरलाइज फीचर है उसके बेसिस पे मॉडल बने, उसके बेसिस पे डिसीजन ले। ओके सर। और जो लोकल पैटर्न है, जो एक आध लोकल बंदा था जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब जो इंजीनियर मतलब प्रोग्रामिंग नहीं जानता था, उसके बेसिस पे अगर मॉडल बनाओगे तो ऑब्वियसली मॉडल काम तो करेगा नहीं, एक्यूरेसी तो आएगी नहीं। यस सर। या तो क्या कहते हैं कि तो सिंपली मेजोरिटी आपका जो लोग हैं वहां पर, उसमें मेजोरिटी बिहेवियर को कैप्चर करना चाहिए आपके मॉडल को। अगर आपका माइनॉरिटी को कैप्चर करने लग जाए, मीन्स जो आपका, सिंपल सी बात है आपका कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर मान लो कोई अच्छा मॉडल बनना चाहिए आपका, तो ग्लोबल आपका फीचर्स कैप्चर होने चाहिए। अगर आपने लोकल फीचर कैप्चर कर लिए तो ऑब्वियसली जो अनसीन डेटा है उसमें तो लोकल फीचर होंगे नहीं वो वाले, उसमें तो मॉडल फेल हो जाएगा आपका, यस सर। ठीक है ना? यस सर। और ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि आपको पूरा पूरे डेटा सेट में बहुत ही फ्रैक्शन आपका परसेंटेज में डेटा होगा जो लोकल पैटर्न वाला होगा, ज्यादातर ग्लोबल पैटर्न वाला ही डेटा होगा, यस सर। यही होगा ना जनरली। तो आपका मॉडल क्या होना चाहिए, Yes, sir. मॉडल आपका इस तरह से ट्रेन होना चाहिए आइडली कि वो कम से कम लोकल पैटर्न को मतलब कैप्चर करे, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग हो आप किसके ऊपर, उसके ग्लोबल फीचर्स के ऊपर ट्रेनिंग हो, सो दैट नया बंदा आपका जब आएगा उसमें भी ग्लोबल फीचर्स की मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो प्रिडिक्शन अच्छा होगा, ओके ठीक है? सर। तो ये डिसीजन ट्री की ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या आपका ये है कि जब आप ट्रेनिंग करोगे ना, ट्रेनिंग करते समय कितना भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, ये उसको कैप्चर कर लेता है। और यस सर। कैप्चर करने के लिए अगर आप डेप्थ पे कंट्रोल नहीं किया आपने, तो क्या होता है कि ये लोकल पैटर्न को कैप्चर कर लेता है। उससे क्या होगा कि उस ट्रेनिंग डेटा सेट पे अगर मान लो उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि उसने लोकल पैटर्न सब कुछ लर्न कर लिया है। लेकिन कोई नया बंदा आते ही आपका, क्योंकि उस पर तो केवल नए बंदे पर लोकल फीचर्स तो मिलेंगे नहीं, जो कॉमन फीचर है वही मिलेंगे, तो उस केस में आपका Yes, sir. आपका ये जो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो टेस्ट डेटा आएगा, जो अनसीन डेटा आएगा, उस पर आपके एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी। समझ में नहीं आया? तो ट्रेनिंग एरर तो Yes, कम sir. होगी,
ट्रेनिंग एरर तो कम होगी, टेस्ट एरर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन को मैंने ओवरफिट बताया था ना, मैंने ओवरफिट हो जाएगा मॉडल आपका। यस सर, ये कंडीशन बता चुका हूं ना मैं आपका, यस सर, ठीक है ना। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, समझ में आ गया सब कुछ? यस सर, हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो गाइस, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है सर। नहीं है, श्योर? आई यस रिक्वेस्ट सर, I request other person basically please type on the chat window. Chat window में टाइप कर दो गाइस। समझ में अगर आपको आ गया है तो प्लीज टाइप ऑन द चैट विंडो गाइस। ओके, चलिए गाइस। अच्छा गाइस, ये बताओ, अब देखो, नेहा कैन यू कम ऑन द माइक? नेहा कैन यू यूज द माइक? यस सर। नेहा पूरा समझ में आ गया ओवरफिट वगैरह कि आपका जो जो आपका डिसीजन ट्री, उसका एडवांटेज भी ये है कि नॉन लीनियर पैटर्न को कैप्चर कर लेता है, कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन उसको कैप्चर करने के चक्कर में क्या होता है, लोकल पैटर्न को ही कैप्चर कर लेता है, जिसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। टेस्ट डेटा जो आएगा उसमें वो पैटर्न नहीं होंगे तो एरर आ जाएगी। तो टेस्ट एरर ज्यादा यस सर। ओवरफिट हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेप्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा ट्री नहीं बनाना है हमें, उसको डेप्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो जरा एक चीज देख लो, रैंडम फॉरेस्ट देख लो, उसके बाद में डेप्थ को कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपका। रैंडम फॉरेस्ट वाले को देखो जरा। देखो, रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली डिसीजन ट्री का एक्सटेंशन है। डिसीजन ट्री में जो ड्रॉबैक था कि ओवरफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रोन टू ओवरफिट, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। रैंडम फॉरेस्ट आल्सो बेसिकली वन बेसिकली दैट मेथड। इसमें क्या होता है, बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट इटसेल्फ इज सेइंग लॉट ऑफ ट्रीज। नया समझ में आ रहा है ना? फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। नेहा ओके। अब देखिए जरा, रैंडम का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए। गाइस कैन यू दैट अंकित कैन यू कम ऑन माइक? यस सर। सपोज करो अंकित, ये मान के चलो, सपोज करो कि मेरे डेटाबेस में R1 R2 लेट्स से 10,000 रोज हैं, ठीक है। और Okay, X1 okay, X2 X3 अप टू लेट्स से X20 तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, Y आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है ना। ओके। कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा डेटाबेस में आपका कितने आपका रोज हैं, 10,000 रोज हैं, 10,000। और 20 आपका वेरिएबल है। ओके। अब मैं क्या करूंगा, रैंडम फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ट्रीज बनाऊंगा मैं, ठीक है। लेट्स से अच्छा सर। 500 ट्री बनाए इस डेटा सेट के करस्पॉन्डिंग, T1 T2 अप टू लेट्स से T3 अप टू लेट्स से T500। अब आप पूछोगे सर इसमें नया क्या कर दिया आपने, सेम डेटा सेट ले रहे हो, तो ये एक ट्री दूसरे ट्री से कैसे डिफरेंट हुआ, इससे मजा क्या आएगा, क्या फायदा मिलेगा इससे, ठीक है ना। तो वहां पर आपका देखो पहले डिफरेंट, एक ट्री दूसरे ट्री से किस तरह डिफरेंट है, ये रैंडम आपका वर्ड है, ये डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, देखो गाइस, देखो ट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा सेट चाहिए। तो इसका डेटा सेट कैसे बनेगा, देखिए डी से नया डेटा सेट बनाएंगे D1। उसमें क्या करेंगे गाइस, वही सैंपल मेथड का यूज करते हुए 10,000 रोज बनाएंगे। इसमें क्या होगा, आपका रैंडमली आपका सैंपल करेंगे विद बूट स्ट्रैप, रिपीटेशन अलाउड करेंगे। रिपीटेशन अलाउड करने का मतलब क्या है कि सपोज करो R5 रोज सपोज करो 2 टाइम्स आ गई, R1 आपका मान लो 10 बार आ गई, R1 R1 R1, मान लो R100 आपका मान लो 1 बार आई, मान लो R99 आई नहीं। तो इस तरीके से 10,000 रोज आपने बना ली बूट स्ट्रैपिंग करके। बूट स्ट्रैप सैंपल समझ में आ गया गाइस? ओके सर। ठीक है। एक तो आपने रैंडम ये कर लिया, आपने एग्जैक्ट 10,000 तो लिया, लेकिन 10,000 रोज आपका कुछ रिपीट होंगी, कुछ आएंगी नहीं, इस तरीके से रैंडम लिए आपने। एक तो ये ले लिया, और उसमें जो वेरिएबल लिए वो भी जो कैसे लोगे आप, उसमें आप फिक्स कर रहे हो फॉर एवरी ट्री लेट्स से 5 वेरिएबल आपने डिसाइड किए, 5 वेरिएबल्स। रैंडमली 25 वेरिएबल आपका सेलेक्ट करेंगे T1 के लिए, रैंडमली 20 में 5 वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे T2 के लिए, रैंडमली T3 के लिए सेलेक्ट करेंगे, रैंडमली 4 के लिए सेलेक्ट करेंगे, रैंडमली 100 के लिए 500 के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो समझ में आएगा डिफरेंस क्या होगा अंकित? ओके सर। क्लियर हो गया? जी सर। तो आपका अब देखो, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये 500 के 500 ट्री डिफरेंट होंगे।
धनंजय, कैन यू यूज योर माइक? धनंजय, यस सर, यस सर, ये चीज समझ में आ गई बेटा? 500 को 500 ट्री बनाएंगे, डिफरेंट कैसे होंगे? यस सर, ठीक है। अब देखो ये बताओ मेरे को, अब 500 ट्री मान लो आपका, हम लोग क्लासेस का वो कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक मान लो क्वेरी पॉइंट, एक नया ऑब्जर्वेशन आता है, वो किस क्लास में फॉल करेगा, 0 में करेगा, 1 में करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस क्वेरी पॉइंट को हम T1 को देंगे, उसका व्यू पता करेंगे, T2 देंगे, उसका व्यू पता करेंगे, T3 का व्यू देंगे, उसको पता करेंगे, T500 का। तो लेट्स से T1 ने बोला कि 0 क्लास का बंदा ये ऑब्जर्वेशन है, T2 ने बोला 0 क्लास का ऑब्जर्वेशन है, T3 ने बोला नहीं 1 क्लास का ऑब्जर्वेशन है, T4 ने बोला 0 क्लास का ऑब्जर्वेशन है, T5 ने बोला 0 क्लास का, T6 ने बोला का। हम क्या करेंगे, मेजोरिटी बेस्ड डिसीजन ले लेंगे, और जो यस 500 ट्री की जो मेजोरिटी बताएगी वही आंसर परफेक्ट होगा। यस सर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर ऐसा करने से मेरे आपका जो ड्रॉबैक था, आपका जो ओवरफिट वाला चांसेस थे, वो कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? एक डिसीजन ट्री था यहाँ पर, Yes, sir. वो कम कैसे हो रहे हैं, बता सकते हो कोई आइडिया? सर जो काम हम मतलब एक से कर रहे थे उसके अंदर काफी ज्यादा हमारे डेप्थ था, तो अब उस चीज को हम 500 के साथ ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चांसेस कम हो जाएगा। देखो डेप्थ से कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग कोई पैरामीटर है, डेप्थ का बताऊंगा मैं। अभी तो सिंपल डेप्थ कुछ बिना सोचे समझे ये देखो जरा। अंकित मेरे को ये बताओ, सॉरी देवेश हो ना, कौन धनंजय? धनंजय, धनंजय लोग सिंपल सी बताओ कि मेरा डेटा सेट किसी ने दिया है मेरे को, उसके ऊपर मुझे डिसीजन ट्री या लीनियर रिग्रेशन कुछ भी लगाना है। सब उसको मैंने डिसाइड किया मुझे डिसीजन ट्री लगाना है या रैंडम फॉरेस्ट लगाना है। तो पहली चीज तो बताओ कि मेरे परसेंट जो डेटा उसमें नॉइज परसेंटेज तो बहुत कम होगा। यस सर, और जब मैं रैंडम आपका बूट स्ट्रैप सैंपलिंग कर रहा हूं और रैंडम 5 वेरिएबल ले रहा हूं का मैं, तो जब परसेंटेज ऑफ द डेटा इज ट्रू डेटा, अच्छा डेटा है, जनरलाइज कर सकते हैं कि Yes, sir. कुछ ही फ्रैक्शन डेटा जो आपका वो गड़बड़ है, तो मान के चलो कि आपने 500 ट्री बनाए उस डेटा से रैंडम रैंडम करते हुए, तो कुछ ही ट्री तो डिफेक्टेड होंगे, बाकी ज्यादातर मेजोरिटी ट्री तो अच्छे होंगे ना। यस सर, तो मान के चलो क्योंकि डेटा में नॉइज थी, नॉइज की वजह से कैप्चर हो गए, तो 50 ट्री डिफेक्टेड हो गए। चलो यस सर, आप सिंपल सा मान के चलो कि 100 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। उसमें से क्या कहते हैं, आपका कुछ लोग वाइज्ड है, आपका आपने क्या किया, कुछ सैंपल बनाया, आपका रैंडमली आपने 100 लोग बना लिए, और किसी को बोला कि आपको 2 चांस मिलेंगे, किसी को बोला 3 चांस मिलेंगे, किसी को बोला आपको कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि 100 का पार्ट नहीं हो आप। इस तरीके 100 बना लिया आपने रैंडम, आपने पॉपुलेशन का मतलब तो ये था ना। तो ऑब्वियसली यस सर, जिस बंदे का अब जो वाइज्ड बंदे अपने आप में कम है, तो अभी एक्स्ट्रा पुलेट करोगे तो और मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे वो। तो 500 में से मान लो 50 ट्री तो खराब हो गए, 450 तो सही है, उनका मेजोरिटी Yes, डिसीजन sir. होगा ना, ओवरऑल मेजोरिटी Yes, sir. होगी ना। तो इस वजह से आपका क्या होगा, नॉइज का इफेक्ट आप कम कर सकते हैं रैंडम फॉरेस्ट की वजह से। नॉइज का इफेक्ट कम करने का मतलब क्या होगा, यू कैन जनरलाइज योर मॉडल, और इन अदर वर्ड बेसिकली यू कैन बेसिकली रिमूव द ओवरफिटिंग इफेक्ट। आइडियाज क्लियर? ओके सर, यस सर, ठीक है, ये तो वो चीज हो गई। और जो डेप्थ वाली चीज बता रहे वो तो सिंपल सा वही था कि आप एक्सेल शीट पे फिल्टरिंग से समझिए, क्या फिल्टर करते करते एक रो रह जाए लास्ट में। अब उस एक रो के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लोगे, एक आदमी के बेसिस पे डिसीजन लोगे पूरी पॉपुलेशन का, क्या ले सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं ना, इसलिए वो ओवरफिट वहां से होता है। तो ओवरफिट होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना? आइडियाज ओके क्लियर? सर, तो बस एक था कि Yes, डेप्थ sir. को आप डेप्थ को कंट्रोल कर लो, उससे ओवरफिट रोक सकते हो, या रैंडम फॉरेस्ट बना लो, उससे रोक सकते हो। आइडियाज क्लियर? ओके सर, यस सर, चलिए, तो गाइस अभी एक एक्स्ट्रा ट्री वाला कॉन्सेप्ट और बचता है। अच्छा सुनो गाइस, तो मैं एक चीज बताता हूँ गाइस। गाइस आपका वो मैंने वो बताया था कि आपका क्रॉस वैलिडेशन बता दिया था आपको गाइस। हेलो हेलो, हेलो, यस सर, क्रॉस वैलिडेशन बताया था क्या मैंने आपको? याद नहीं सर, शायद नहीं बताया सर। नहीं बताया, सभी लोग बता नहीं बताया। चलो देखो गाइस क्या होता है, देखो गाइस जरा देखो, जरा ध्यान से सुनिएगा, देखो। अच्छा गाइस कौन कौन है देखिए जरा, मैं किसी अब दूसरे को बुलाता हूँ, उसको चांस ना दिया हो। देवेश कैन यू कम ऑन माइक? देवेश
हाँ ये सर। आगे देवेश, अब तक सब चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। देखो ऐसा है, देखो हमें क्लाइंट आपका एक डेटा सेट देता है, उसको हम डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग और टेस्ट। इतनी समझ में आती है? यस सर। तो जो आइडियल क्या होता है कि आप मॉडल तो ट्रेनिंग वाले डेटा सेट पे बनाएं और टेस्ट आपका दूसरे डेटा सेट पे करें, अनसीन डेटा पे। ठीक है, आउट ऑफ सैंपलिंग टेस्टिंग बताया था मैंने आपका। लेकिन होता क्या है, सपोज करिए आपने क्लाइंट ने डेटा बहुत कम दे रखा है, तो आपने कुछ परसेंटेज आपने यूज ही नहीं किया, उसका टेस्टिंग के लिए छोड़ दिया, आपने मॉडल को फिट करने में किया ही नहीं यूज आपका। ये ड्रॉबैक भी तो है इस वाली चीज का। समझ में आया नहीं आया देवेश? यस सर। जो सिंपल सा आइडिया देखो ये है कि ट्रेनिंग जब हम कर रहे हैं हम लोग, तो ट्रेनिंग करते समय ध्यान ये रखना है आपका, देखो जितना ज्यादा डेटा सेट आप ट्रेनिंग में यूज करोगे उतना अच्छा मॉडल आपका बनेगा, और जितना कम आपका डेटा यूज करोगे ट्रेनिंग के लिए, मॉडल उतना ही बेकार बनेगा। अब आप सिंपल सा समझिए, ये तो एक फिलॉसफी हो गई यार। देवेश आप प्लीज यार कहीं आइसोलेशन में नहीं जा सकते क्या? नेहा, कैन यू यूज योर माइक? नेहा प्लीज यूज योर माइक। नो, आपका चलो इंटरनेट इशू होगा। चलो who will come? अंकित, कैन यू कम? यस सर। अंकित, अब मुझे बताओ कि आपका क्लाइंट ने मुझे एक डेटा सेट दिया, उसको मैंने ट्रेनिंग और टेस्ट में पार्टीशन कर लिया, समझ में आ गया इतना? जी सर। और आइडिया ये होता है कि देखो अल्टीमेटली जो आप मॉडल बना के दोगे क्लाइंट को, वो फ्यूचर डेटा के प्रोडिक्शन के लिए यूज करेगा, वो अनसीन डेटा के लिए यूज करेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आइडिया यहाँ पर ये रहता है कि पार्टीशन करने का ट्रेनिंग टेस्ट में, ट्रेनिंग डेटा को तो हम लोग यूज करेंगे मॉडल को बनाने में, और टेस्ट डेटा को बिल्कुल टच ही नहीं करेंगे। और मान के चलेंगे कि क्लाइंट आपका जो टेस्ट डेटा है आपका, उस पर मतलब फ्यूचर डेटा है क्लाइंट का ही, उस पर परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। अगर उस पर अच्छा दे रहा है तो हम क्लाइंट को बोल देंगे भैया आपका टेस्ट डेटा भी करके देख लिया, अच्छा दे रहा है। ठीक है? यस। लेकिन अब एक चीज में ड्रॉबैक क्या है आपका, कि मान लो क्लाइंट ने 1000 रो दिए आपको, 100 ऑब्जर्वेशन या 1000 ऑब्जर्वेशन, उसमें मान लो 400 ऑब्जर्वेशन आपने रख दिए टेस्ट के लिए, आपने 600 यूज किए ट्रेनिंग के लिए, तो 400 एक तरीके वेस्ट भी तो हो गए। हाँ सर। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, इसका एक तरीका दूसरा ये है कि उन्होंने क्या बोला, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करते हैं इसका। ठीक है? तो उसमें क्या, देखो इनफैक्ट ये तो यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। इनफैक्ट जो बता रहा था ना आपको, मैं एक नया टेस्ट बनाता है इंटरमीडिएट आपका, जो वैलिडेशन डेटा सेट बोला जाता है इसको। ये आपका इसका ट्रेनिंग का पार्ट होता है, वैलिडेशन डेटा सेट। कभी कभी क्लाइंट ऐसा का बोल देता है कि भैया दो ट्रेनिंग के लिए डेटा आप ही ले लो, टेस्ट के लिए मैं डेटा में बाद में दूंगा आपको। कभी कभार ये हो जाता है। तो आप मान के चलो ये डेटा आपका पास अभी है नहीं है, आपके पास सिंपली ट्रेनिंग डेटा था, तो उसको क्या करोगे, दो में पार्टीशन करोगे, एक वैलिडेशन डेटा सेट बोलोगे, एक ट्रेनिंग बोलोगे। इससे तो आपका मॉडल ट्रेन करोगे और इससे वैलिडेट करोगे मेरा मॉडल अच्छा है या नहीं है। तो वैलिडेशन एक तरह से टेस्ट का काम कर रहा है, अगर टेस्ट डेटा आपके पास नहीं है तो। ठीक है, मैं सर समझ गया सर मैं। समझ गए ना? अब देखो क्या है, क्रॉस वैलिडेशन क्या बोलता है कि सिंपल सा एक काम करो कि आपका ट्रेनिंग डेटा का पूरा लो, उसको लेट से 5 फोल्ड आपने यूज किया, तो 5 आपका पार्टीशन में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब मान लो ये प्रोपोर्शन, ये आपका ये फ्रैक्शन 1 है, फ्रैक्शन 2 है, फ्रैक्शन 3 है, फ्रैक्शन 4 है, फ्रैक्शन 5 है। आप क्या करो, मॉडल बनाओ इन चारों पे, F1 तो रख दो आपका वैलिडेशन के लिए, और मॉडल बनाओ उस पे चारों पे, F2 F3 F4 F5, और मान लो से एरर आ गई E1। ठीक है? नेक्स्ट टाइम में आपको मॉडल बनाओ, F2 को तो वैलिडेट करने के लिए रख दो, मॉडल बनाओ बाकी सब पोर्शन पे, F1 F3 F4 F5। इसी तरह F3 F4 F5 बन जाएगा मॉडल आपका, E1 E2 E3 E4 E5 बन जाएगा गाइस। यंकी समझ आ गया? तो एवरेज एरर निकालोगे, इसको क्रॉस वैलिडेशन एरर भी बोलते हैं। वो क्या होगी आपका, E1 प्लस E2 प्लस अप टू E5 डिवाइड बाई 5। ठीक है? ओके सर। आइडिया क्लियर हो गया? आइडिया क्लियर हो गया इतना? जी सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा।
कुछ कंफ्यूजन है अंकित? सर थोड़ी बहुत। क्या कंफ्यूजन है पूछो ना यार, किसके लिए बैठा हूं मैं? सर मतलब हम लोगों ने वैलिडेशन नाम ही क्यों दिया हमने? मतलब अगर हमारे पास में कोई डेटा आ रहा है तो हम मतलब वैलिडेट क्यों, या फिर हम लोग टेस्टिंग डेटा का नाम क्यों दे रहे हैं जब हमें इतना कुछ करना है? तो या तो हम ट्रेनिंग और वैलिडेट करें, या तो अरे हम बाबा, ट्रेनिंग और टेस्ट करें। रुक जा रुक जा रुक जा। ये मैं यही तो बताया था मैंने आपका कि टेस्ट डेटा मान लो आपका अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है? या फिर आप डबल श्योर होना चाहते हो कि 2 बार टेस्ट करूंगा अनसीन डेटा पे, तो आपने क्या किया, ट्रेनिंग टेस्ट और आपने डिवाइड कर लिया, और ट्रेनिंग की आपने 2 पोर्शन बना दिए, T1 और T2, ठीक है? ओके ओके और ओके। ठीक है ना, डबल श्योर होना चाहते हो आप, उसमें क्या किया, लेकिन इस प्रोसेस में आपने डेटा लॉस कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि काम करो कि ट्रेनिंग वाले डेटा सेट को पूरा का उठाओ और इस तरह इस प्रोसेस से करो, अच्छा सर। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, देखो हर बार देखो आप ट्रेन कर रहे हो दूसरे डेटा पे और चेक कर रहे हो दूसरे डेटा पे, अनसीन डेटा जो अच्छा F1 आपका यूज ही नहीं हुआ इसमें, F2 यूज ही नहीं हुआ इसमें। अब एक चीज और बतानी है मेरे को इसमें, जो समझने वाली चीज है, वो लास्ट टॉपिक है आज का, वो समझिए जरा देखा। वो ये गाइस देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जस्ट मिनट गाइस। अब देखो सपोज को डेप्थ समझ में आती है ट्री की ना, ये ट्री है आपका, जी। ये डेप्थ मीन्स ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल, 2 लेवल हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करूं आपका अंकित, ओके देखो सेम डेटा सेट के लिए, सेम डेटा सेट के लिए मैं क्या करता हूँ, डेप्थ ले लेता हूँ। सपोज करो एक ट्री बनाता हूँ, उसमें 4 डेप्थ है, एक ट्री बनाता हूँ उसमें 2 डेप्थ है, एक ट्री बनाता हूँ उसमें 6 डेप्थ है, एक ट्री बनाता हूँ उसमें 10 डेप्थ है, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, ओके वही सेम आपका क्रॉस वैलिडेशन एरर आपका कैलकुलेट करता हूँ। 4 डेप्थ के लिए क्रॉस वैलिडेशन एरर निकाली, वही 5 ऑर्डर बना के इस तरह से, 2 के लिए बनाई, 6 के लिए बनाई, इसके लिए बनाई। तो जिस वाली डेप्थ के लिए क्रॉस वैलिडेशन एरर कम होगी, दैट मीन्स उतना मॉडल में ले लूं, मान लो इसके लिए मिनिमम है आपका, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ भाई मुझे इस डेटा सेट के लिए आपका 6 डेप्थ वाला डिसीजन ट्री बनाना है, यस सर। ठीक है? आइडिया क्लियर? यस सर। क्रॉस वैलिडेशन कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग द विच इज द बेस्ट डेप्थ। अच्छा दूसरा एक चीज था ओके अंकित मेरे सर। को, दूसरा एक चीज था अंकित मेरे को, ये ट्री का जो अपर पोर्शन है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये पोर्शन आपका जनरलाइज पैटर्न आपका आइडेंटिफाई करेगा, जनरलाइज पैटर्न, एंड एज यू गो इन डीपर एंड डीपर डीपर तो लोकल पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा। ये चीज समझ में आती है ना? ओके ओके नहीं समझ में आई, नहीं आई? जी सर। कंफर्म ना? हाँ हाँ। क्योंकि वो जो मैं एग्जांपल बताया था ना, लोकल वाला, जनरलाइज वाला, भाई जितना जी जी। एक्सेल शीट में रोज कम करते जाओगे, डेटा कम होता जाएगा, तो उतना ही आपको स्पेसिफिक आपका वो डिसीजन हो जाएगा जो आपका जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपका ध्यान रखना है, बैलेंस बना के चलना है आपका। आइडियाज क्लियर? ओके जी सर। चलिए ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चन? गाइस एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना गाइस? अच्छा गाइस ये बताइए, हेलो गाइस, ये बताइए कि हम लोग मतलब वीक डेज में कभी क्लास और भी एक आध दो क्लास कर सकते हैं? एक क्लास हमारी कैंसिल हुई थी, उसको ओवरकम करने के लिए। गाइस इज इट पॉसिबल? आई एम आस्किंग द possibility from each and every individual, plus please say yes or no. I am saying basically not sure, धनंजय। चलिए, अगर आप आपस में बात कर लीजिए, कुछ ऐसा हो तो बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है ना गाइस? कुछ और पूछना है? अदरवाइज वी कैन एंड फॉर द डे। कुछ पूछना गाइस? गाइस कुछ पूछना है? ओके, सो हु इज एब्सेंट टुडे? चांदनी, मुमल एंड अभिषेक। ओके ठीक है गाइस, ओके थैंक यू।